you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, which is providing you the solution of each and every question in different chapters of NCERT book in the easiest way, so that you can understand each and every calculation. Okay, let me take, because generally the student they are unable to differentiate what are the zeros and what are the roots. I will differentiate it clearly, you will understand. Okay, but before viewing my video, you must have to like my video, share my video, and press the icon button so that my videos, as soon as I will post my videos, it will reach to you, and subscribe my videos. Okay, let me start the main thing. Now, zeros of the polynomial. I will take the example. Okay, let us take a linear polynomial. I told you already the definitions of different types of polynomial. Linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, monomial, binomial, trinomial, each and everything. Okay, let me take, this is a linear polynomial. Okay, let me find out the value of this linear polynomial at different constants. Number one, let me take at x is equal to 2. Okay, it is the polynomial is denoted by px. Always you must have to keep in mind variable as x, and at this one p may write for px will be equal to x minus 3. Okay, in place of x you write 2, it will be equal to 2 minus 3, it will be equal to minus 1. You got minus 1 its value. Okay, second case, and at x is equal to 3, then what will be p3? P3 will be equal to 3 minus 3, it will be equal to 0. You have got the value 0 of the polynomial. Okay, that is why you must have to keep in mind the value, the constant at which the value of the polynomial you are getting 0, that constant value will be the 0 of the polynomial. जिस पर भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, जिस नंबर पर भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ये कांस्टेंट नंबर क्या हो जाएगा? दैट विल बी द 0 ऑफ द पोलिनोमियल. तो इसलिए हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? किसकी वैल्यू आई है? जब हमने x इज इक्वल टू 3 लिया तो हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0. तो हम क्या बोलेंगे भाई? x इज इक्वल टू 3 इज ए 0, इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल. व्हाट पोलिनोमियल? x minus 3 polynomial is a 0 of polynomial. What polynomial? That is why try to understand. I will differentiate it between the zeros and roots. That is why 3 is the 0 of the polynomial. Very important thing. Okay, you can take other examples also. Let me take suppose the second example so that it will be clear to all of you. Second example, let me take in place of 3 you take 5. Okay, and similarly you substitute 5 here. Here also you substitute x minus 5, means in place of x you write 5. Here will also be 5, and I think, my dear student, its value will also be equal to 0. What does it mean? 5 is the 0 of this linear polynomial. Therefore 5 is a 0 of the polynomial. What polynomial? Linear polynomial. Polynomial x minus 5. X minus 5. This is a polynomial. That is why try to understand. Zeros we find out only in the polynomial. Whenever you will get the value of the polynomial at any constant, and suppose its value is 0, that will be the 0. That constant will be the 0 of the polynomial. वो कांस्टेंट पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, अब हम रूट्स की बात करते हैं. ये डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने बता दिया आप लोगों को, और जनरल कंडीशन भी मैं लूंगा. जनरल कंडीशन क्या हो सकती है? जनरल कंडीशन, अच्छा चलिए जनरल कंडीशन, क्योंकि जनरल कंडीशन भी बताना बहुत जरूरी है आपको. इस एग्जांपल को हटा देता हूं मैं. लेट मी टेक द जनरल कंडीशन सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट. लेट मी टेक जनरल condition. In general condition you will take what? A 0 of the polynomial. A 0 of the polynomial. I am writing over here. Polynomial
a zero of the polynomial px. Polynomial I told you already. It is to be denoted by px. Is a number. Suppose c. I am taking c. Okay, such that PC should be equal to 0. That is the formula. In general, you will have to use. As I told you already, in place of c, you can write any number as per the given polynomial. That value should be equal to 0. Then what you will say? That value c, I told you already, a zero of the polynomial px is a number c. c is the zero of this polynomial. जब c की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके यदि पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो c क्या हो जाएगा? दैट विल बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. ये पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा? 0. अब चलिए रूट्स लेते हैं. रूट्स आई विल टेल यू द रूट. लेकिन रूट होने से क्या हो जाएगा? रूट किसका निकालेंगे? देखिए, लेट मी टेक रूट्स ऑफ द polynomial equation. Polynomial equation, same thing. Polynomial equation. Let me take the linear polynomial example. Same example I will take so that it will be clear to you. Let x minus 3 is equal to 0 is a polynomial equation. When you will put linear polynomial equal to 0, it will become polynomial equation. And 3 you transpose from left side to right side, it will be equal to is a root of what? X minus 3 is equal to 0. Polynomial equation. 3 is the root. That is why you must have to keep in mind, my dear student, this is only the difference. And there is no difference between the zeros and roots. These are same. Roots and zeros are same. That is why there should not be confusion. नहीं होना चाहिए इसके अंदर. zeros हम निकालते हैं पोलिनोमियल में और रूट्स कहाँ पे निकालते हैं? पोलिनोमियल इक्वेशन में. और इक्वेशन कब बन जाती है? जो भी आपकी लीनियर पोलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, तो वो किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए. ठीक है. इसमें आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यही ले आप. So many examples are there. Okay? एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. अच्छा चलिए मैं इसमें निकाल देता हूं. एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं. फाइंड द रूट्स. ये आपने पहले भी पढ़ा है फैक्टराइजेशन में, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे क्लास 9. फाइंड द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ठीक है ना? फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, वो मैं आज ही बता देता हूं आपको. देखिए बिगिनिंग में ही बता देता हूं. क्या होगा? मिडिल टर्म ये है ना 3x और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 2. और x स्क्वायर का कोफिशिएंट आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने पहले डिस्कस कर दिया. कोफिशिएंट क्या है? 1 into 2 2. 1 into 2 देखिए आप लिख देता हूं. 2 into 1 इज इक्वल टू 2. दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है जिससे क्या होना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन तो उनका 2 ही होना चाहिए, लेकिन सम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए. मिडिल टर्म के ऊपर देखो, -2x और -x -3x. सम तो कितना हो गया? -3x. और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए इसका कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा ना. ओके, तो क्या होगा? इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है? x कॉमन है ना, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x -2. और यहाँ पे क्या है? -1 कॉमन ले लो. देखिए ब्रैकेट ले लिया मैंने, तो साइन विल बी चेंज. अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. x -2. अब बता दो क्या कॉमन है दोनों में? यहाँ भी x -2 कॉमन है ना, और यहाँ पर x -2 आपने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? x -1 बचेगा ना, इज इक्वल टू 0. देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखना इसमें फैक्टराइजेशन में, आइदर मैं लिख देता हूं, आइदर ये 0 के इक्वल होगा और फिर ये 0 के इक्वल होगा. किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट यदि आप निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, तो कब 0 आ सकता है? भाई 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 0 आएगा ना. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 थोड़ा ही आएगा, 6 आएगा. तो इनमें से दोनों में से या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा ना. क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 भी ना. देखिए 0 दिया हुआ, इट इज इक्वल टू 0. या तो ये 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए. टेक्निकल चीज बता रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो हमने क्या किया? या तो ये 0 लिख लिया या 0 लिख लिया. और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.
और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो रूट्स क्या आ गए इससे, देखिए रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, ठीक है भाई, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या रूट्स आ गए भाई 1 और ये रूट्स आ गए इसके। अब सपोज माय डियर स्टूडेंट जीरोज निकालना है, इसको एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पर, चलिए मैं लिख लेता हूं, यहीं पर लिख लेता हूं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल बना देता हूं, हालांकि पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूं, दैट इज मीन फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ओके। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कैसा करो, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट पॉलिनोमियल, x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, जीरो नहीं लिखा मैंने, जीरो नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, px से रिप्रेजेंट कर देता हूं। वही सेम थिंग, फैक्टराइजेशन आपको निकालना ही है, x स्क्वायर माइनस अभी मैंने बताया 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं लिखा है मैंने, ओके। यहां पे वही x कॉमन है, x माइनस 2, यहां पे माइनस कॉमन x माइनस 2, हाँ जी x माइनस 2 और x माइनस 1, ये फैक्टराइजेशन आ गई, लेकिन ये किसके इक्वल है, px। और मैंने डेफिनेशन बताई है, इन जनरल डेफिनेशन आपको बताई है अभी PC is equal to 0. If PC is equal to 0, then C is a 0. C is a 0. 0 of Px. C is a 0 of Px. If PC is equal to 0. Okay? तो C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे ये बता दीजिए, मैं दोनों वैल्यू लूंगा भाई, आई विल टेक बोथ द वैल्यूज। सबसे पहले एट फर्स्ट केस x इज इक्वल टू 1 पे निकालते हैं, तो यहां पे देखिए P1 के स्थान पे, ये क्वेश्चन भी मैं निकालूंगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम थिंग आई एम टेलिंग यू। यहां पे क्या करूंगा, 1 के स्थान पे, x के स्थान पे 1 रख दो, -3, फिर यहां भी 1 रख दो, प्लस 2 कर दो। चलिए बता दीजिए 1 माइनस 3 प्लस 2, हाँ जी 3 माइनस 3, देखिए 1 प्लस 2 पॉजिटिव, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए सेकंड केस लेते हैं, सिमिलरली P क्या आया था भाई, नेक्स्ट 2 आया था हमारे पास, तो जहां भी x है वहां पर 2 रख दीजिए, 2 इंटू 2 और प्लस 2, हाँ जी 4 माइनस 4, देखिए सॉरी ये 3 था हमारा, 2 नहीं है, ये 3 है, पॉलिनोमियल में हमारा 3 है, 3, ठीक है, ये 3 है और 6 और प्लस 2, तो कितना हो गया, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट डज इट मीन, P1 भी 0 आ गया, P2 भी 0 आ गया, तो हमारे जीरोज क्या हो गए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2r क्या हो गए, 1 एंड 2, दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए मैंने जीरोज भी निकाल दिए और उसके मैंने रूट्स भी निकाल दिए। That is why, my dear student, you must have to keep in mind how you can find out what is the differentiation between roots and zeros. Clearly, I have mentioned over here. My dear student, I think some more questions I will tell you later on. But let me take some important and the basic things related with the zeros of the polynomial. Very important thing I want to tell you. Constant of the polynomial. Constant of the polynomial. What are the constants of the polynomial or constant polynomial? You write constant polynomial. क्या क्या है भाई constant polynomial? चलिए बता दीजिए। constant polynomial कहते हैं all 1 2 3 4 5 जितने भी इंटीजर्स हैं सब constant polynomial में आते हैं, all are constant polynomial. Even आपका 0 is also a constant polynomial. Okay, now you see, I told you already,
दिस थिंग। सपोज मैं 4 लिख रहा हूं, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4x टू द पावर 0। 4 को क्या लिखा मैंने, 4x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 दैट इज 1। स्टिल इट इज 4, भाई ये भी तो 4 है ना, स्टिल इट इज 4, स्टिल इट इज 4, स्टिल इट इज 4, सेम थिंग। 4 को मैंने ऐसे लिखा ना, ये 4 ही है, तो x टू द पावर 0 तो हम क्या लिखते हैं 1। तो इसलिए ये चीजें याद रखनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो यही तो नॉन जीरो है, ये जीरो थोड़ा ही है, 1 2 3 4 5 जीरो के अलावा नॉन जीरो 1 2 3 4 5 दीज आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स हैज नो जीरो, कोई जीरो नहीं होगी उसके, नो जीरो, यानी कि जैसे 2 3 4 5 इनकी कोई जीरो नहीं होगी। जो मोनोमियल्स हैं इनकी कोई भी जीरोज नहीं होगी, कांस्टेंट, ठीक है, इनको याद रखना है भाई, हैज नो जीरो। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू, एवरी रियल नंबर, रियल नंबर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं डेफिनेशन में, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दीज आर रियल नंबर। और मैंने एक वीडियो भी बना करके अपलोड की है मैथ सक्सेस पॉइंट चैनल पर, वो केवल रियल नंबर से ही रिलेटेड, उसमें सारी चीजें हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड। उसके अंदर चार्ट बना करके मैंने एक्सप्लेन किया है। एवरी रियल नंबर इज जीरो। देखिए इसको समझ लीजिए आप लोग, एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल पहले बता दिया मैंने, जीरो इज द जीरो पोलिनोमियल, जीरो ही जीरो पोलिनोमियल होती है, ठीक है। और कोई भी रियल नंबर से आप जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, जीरो ही आएगा ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, एवरी रियल नंबर इज जीरो, कोई भी रियल नंबर जीरो, जीरो पोलिनोमियल का, जीरो पोलिनोमियल ही जीरो, मैंने पहले बता दिया, एवरी रियल नंबर ऑफ जीरो पोलिनोमियल विल बी जीरो। ओके, I think that is clear to you, and I have discussed the very important 2 points here which are very important, and it will help you to study the polynomials. I do hope that all of you will be very much happy to study along with me, and like my video and subscribe my channel, press the icon.